السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 486واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی 2 روز پہلے میں سفر پر تھا۔ ایک شہر کے اندر ایک بڑے عالم دین، ان سے ملاقات کا موقع ملا۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میں انہوں نے روزانہ کا جو اخبار آتا ہے، روزنامہ، وہ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ مولانا اس کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے۔ میں نے جب وہ اخبار اپنے ہاتھ میں لیا تو دیکھا اس کے اندر ایک خبر تھی، یعنی ایک ایڈورٹائزمنٹ تھا، چھاپا ہوا اعلان، جو کسی مدرسے کی طرف سے تھا، اور اس اعلان میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی فلاں فلاں مدرسے میں اپنے بچوں کو داخلہ دلائیے، ہمارے یہاں پر بچوں کے تعلیم کے لیے ساری سہولتیں ہیں، تمام چیزیں فری ہے، مفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ تعلیم ہے، اور اس کے بعد میں مدرسے کا پتہ اور نیچے فون نمبر وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ میں نے جب وہ خبر پڑھا تو وہ عالم دین جو میرے ساتھ میں تھے، میں نے ان سے کہا یہ ایڈورٹائزمنٹ پڑھے آپ نے؟ بولے ہاں، اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ روزانہ اخباروں میں آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، آج ہمارا معیار کتنا گھٹ چکا ہے، گر چکا ہے کہ طلباء کے داخلوں کے لیے ہم کو نیوز پیپر میں اشتہارات دینا پڑ رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ آج بھی ایسے بھی مدرسے ہیں جن کے پاس داخلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کی جو فہرست ہے ویٹنگ لسٹ کی، وہ اتنی لمبی ہے کہ اگر آنے والے 4-5 سال تک بھی وہ نئے بچوں کا داخلہ نہ کرے تو ویٹنگ لسٹ ان کی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ حال ہے، مدرسہ ہی ہے، یہ بھی مدرسہ ہے، وہ بھی مدرسہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک مدرسے میں امت اپنے بچوں کو ڈالنا چاہتی ہے، وہاں پہ گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ جگہ نہیں ہے، وہاں ان کے پاس بچوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس کے باوجود جو بچوں کی ویٹنگ لسٹ ہے وہ اتنی لمبی ہے، اور دوسری طرف اتنا برا حال کہ آپ نے مدرسہ تو کھول دیے، اس کا افتتاح تو کر دیے، لیکن حال یہ ہے کہ بچے آپ کے پاس میں پڑھنے کو آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کو نیوز پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ دینا پڑ رہا ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کے اوپر بہت اچھے طرح سے ریسرچ کیا ہوں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں۔ ایک مدرسہ جہاں ہر کوئی اپنے بچوں کو داخلہ دلانا چاہتا ہے، وہاں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز اور سب سے ضروری چیز ہے تعلیم۔ تعلیم کا معیار اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اوقات مقرر ہوتے ہیں، اتنے بجے بچے نے اپنی درس گاہ میں نظر آنا چاہیے، استاد نے بھی وہاں پہ نظر آنا چاہیے، اور جو مینجمنٹ ہوتا ہے وہ ایک دم چست اور ایک دم کڑک ہوتا ہے۔ مدرسے کا محتمم، مدرسے کا ناظم، ذمہ دار، وہ خود بذات خود مدرسے میں موجود ہوتا ہے، اور اپنی نگرانی میں ہر کلاس کا جائزہ، اوقات کی پابندی، بچے برابر بیٹھ رہے نہیں بیٹھ رہے، تمام چیزیں اس کی اپنی نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ اور تعلیم پہ خصوصی دھیان، 4 مہینے 6 مہینے میں بچے کا نورانی قاعدہ ہو گیا، اس کے بعد ناظرہ شروع، پھر سال 1.5 سال کے بعد میں اس کا حفظ شروع۔ اس طریقے سے ایسے مدرسے ترقی کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مدرسے وہ 50 اور 60 بچوں سے شروع ہو کر چند سالوں کے اندر دورہ حدیث اور افتاء تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی کے کمپیریزن میں بعض مدرسے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو 30 سال سے 40 سال سے چل رہے ہیں، آج تک ان کے یہاں پہ عربی اول کی بھی جماعت شروع نہیں ہو سکی۔ دوم اور سوم کی بات تو دور کی بات ہے۔ ایسے مدرسوں کو کیوں اخبارات میں ایڈورٹائزمنٹ دینا پڑتا ہے؟ اب اس کے بھی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں۔ بعض لوگ مدرسہ تو کھول دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس میں وہ تجربہ نہیں ہوتا ہے مدرسہ چلانے کا، جو
किस तरीक़े से तालीम होना चाहिए, असातिज़ा कैसे होना चाहिए, आपकी असातिज़ा पे पकड़ कैसे होनी चाहिए। बस उनके नाम के आगे एक लक़ब लग जाता है, ज़िम्मेदार फ़लाने मदरसे के, मोहतमिम फ़लाने मदरसे के। अब ये मोहतमिम या ये ज़िम्मेदार अक्सरों को मैंने देखा हूँ कड़क शेरवानी डालकर खाली बस घूमते फिरते रहते हैं, कभी किसी के शादी के प्रोग्राम में, कभी किसी के छिल्ले के प्रोग्राम में, कभी किसी के फंक्शन के प्रोग्राम में, मुसाफ़े मुलाकातें, ज़िंदगी इसी में गुज़र रही है। मदरसे का क्या हाल है, बनाया हुआ है ज़िम्मेदार, अब वहाँ क्या तालीम चल रही है, असातिज़ा बराबर दर्स गाहों में बैठे हुए हैं, ज़िम्मेदार साहब को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ज़िम्मेदार साहब पूरे शहर में पूरे इलाके में खाली फेमस है कि भाई ये फ़लाने मदरसे के ज़िम्मेदार हैं और फ़लाने मदरसे के मोहतमिम हैं और फ़लाने मदरसे को ये चलाते हैं। फिर वहाँ पे तालीम का मेयार इतना घट जाता है। और मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल, अक्सर चूँकि मैं आदमी ही मदरसा और मस्जिद के लाइन का हूँ तो उसी में अपना वक्त गुज़रता है, अक्सर मदरसों में जाना आना होता है। मैं देखता हूँ वो छोटे मदरसे जिन्होंने छोटे पैमाने पर शुरू करके आज दौरे हदीस और इफ्ता तक चले गए, कभी इम्तिहान लेने के लिए जाने की, कभी विज़िट करने के लिए, कभी अपने कुछ पर्सनल काम से जाने की जब ज़रूरत वहाँ पर होती है तो देखता हूँ मैं कि वो सख्ती और असातिज़ा पूरी क्लासों में, और दर्स गाहों का एक निसाब है, दर्स गाहों का एक निज़ाम है और किताबों का एक निसाब है, मुनज़्ज़म तरीक़े से तमाम चीज़ें हो रही है। और माशाअल्लाह अल्लाह ने बच्चों को भी और उम्मत के उस तबक़े को भी जो माल ख़र्च करना चाहता है उस मदरसे का मोहब्बत करने वाला बना दिया, तो दोनों तरीक़े से बेहतरीन तरीक़े से तरक्की हो रही है। ऐसे मदरसे जिनको एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत पड़ रही है और बच्चे नहीं आना चाहते, वहाँ का भी हाल बताता हूँ। ऐसे भी कई मदरसों में गया हूँ, अक्सर तो देखा मैंने कभी भी वहाँ के नाजिम साहब को या ज़िम्मेदार साहब को जब भी गए मुलाकात के लिए, नहीं है नहीं बोले, वो कहाँ गए, कभी सफ़र पे गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए। अब एक मदरसे की मैं आपको कारगुजारी सुनाता हूँ तो आपको सुन के हैरत होंगी। वो मदरसा पिछले 30 सालों से चल रहा है। मुझे एक जनाजे के सिलसिले में उस शहर में जाने का मौका मिला, तो जहाँ पर मैयत थी उसके करीब में ही मुझे खाली पता था, एड्रेस पता था कि यहाँ पे भी एक मदरसा चलता है। वहाँ जब मैं मैयत में पहुँचा तो पता चला कि भाई मैयत में अभी और 2 से 3 घंटों की ताख़ीर है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब अपन आदमी तो मस्जिद मदरसे के लाइन के है, कहाँ जा सकते और, चलो पता किए यहाँ एक मदरसा है। मैंने कहा हाँ भाई, वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं अपनी पहचान वाले हैं, कम से कम मुसाफ़ा मुलाकात करके आएंगे और एक मदरसे की ज़ियारत हो जाएंगी कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इनका निसाब कैसा है, इनका निज़ाम कैसा है, इनके यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, थोड़ा अपने को भी तजुर्बा आएगा। सीखने की नीयत से हम पहुँचे वहाँ पर। अब वहाँ जब मैंने जाकर देखा तो 3:30 बज रहे थे। अब जितने लोग जो मदरसे की लाइनों से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि दुनिया के हर मदरसे में 3:30 बजे का वक्त बच्चों के दोपहर के पढ़ाई का होता है। हर मदरसे में जो सुबह से लेके तो 11 बजे तक की तरतीब होती है, उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट होती है ज़ोहर के बाद खाना वगैरह तो बच्चे ज़ोहर के पहले फ़ारिग हो जाते हैं। ज़ोहर के बाद जो दूसरी शिफ्ट शुरू होती है 2 बजे से या 2:30 बजे से, और उसकी तरतीब वही होती है असर से पहले छुट्टी की। अब 3:30 बजे तो दुनिया के हर मदरसे में तालीम होती है, लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि कमरों के अंदर पेटियाँ वगैरह सामान पूरा बिखरा हुआ है। दर्स गाहों में तालीम है ही नहीं, मतलब कोई भी नहीं है दर्स गाहों में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे से मैंने पूछा, मैं बोला बेटा कोई उस्ताद, कोई मुअल्लिम, कोई ज़िम्मेदार? हाँ है ना, बोले वो सामने मैदान में क्रिकेट चल रहा, बोले देखो वहाँ पे। अब मैं सामने के दरवाज़े से दाखिल होकर पूरे मदरसे को पार करके जब आखिर के दरवाज़े से उधर निकला तो देखा कि बाहर जो है माशाअल्लाह बेहतरीन टूर्नामेंट चालू है और क्रिकेट का गेम हो रहा है। अब जैसी मैं वहाँ पे पहुँचा तो एक बच्चे ने आवाज़ दी, ओ मौलाना देखो ये कोई तो भी मेहमान आए हुए हैं, बोले। अब वो बच्चे ने जैसी ही आवाज़ लगाया तो वो मदरसे के जो उस्ताद साहब थे वो वहाँ पर बैट वगैरह ज़मीन पे रख के आए वो मेरे पास में।
मैंने कहा भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है, क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे मय्यत में शिरकत के लिए आया था, तो चलो मैंने सोचा मदरसे में भी आपके विज़िट कर दूँ, थोड़ा सा जायज़ा लूँ, देखूँ क्या हाल है। हाँ हाँ जी फरमाइए ना। बोले क्या है? मैं बोला कुछ नहीं है, अभी तालीम नहीं हो रही है क्या ये वक्त में? नहीं, तालीम ही हो रही थी। बोले मगर वो बच्चों का सबक वो हो गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा महल्ले के बच्चे हैं उनके साथ में क्रिकेट खेलने आ गया। बोले मैंने कहा आपकी जो किताब है सालाना जो रूदात छपती है, उसमें लिखा हुआ था कि आपके यहाँ पे 6 असातिज़ा है, वो कम से कम 3 तो बताओ मुझे 6 में से। नहीं नहीं, अभी वो छुट्टी पे है, वो ऐसा है, मैं अकेला छे। बोले मैं खुद ही संभालता हूँ बच्चों को। मैंने कहा यार तुम्हारे नाजिम साहब कहाँ पे है? नहीं, नाजिम साहब बोले वो फ़लानी जगह मिलने को गए हुए हैं, मुलाकात के लिए गए हुए हैं। मैंने कहा तुम्हारे रूदात में लिखा हुआ था तुम्हारे यहाँ पे अरबी सुवम तक की तालीम है, मुझे सिर्फ नूरानी कायदे वाले बच्चों को लेकर बैठना है और उनका जायज़ा लेना है। कहाँ है बच्चे? हाँ बच्चे, ए इधर आओ रे, इधर आओ बोल के उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किए बच्चों को। मैंने कहा ए अल्लाह, ये हाल है हमारा कि हम ढंग से एक मदरसा नहीं चला सकते और बातें हम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के दोबारा से हुकूमत के निज़ाम को चलाने की। ये हाल है हमारा। उसके बाद में मैंने कहा और मुझे ज़रा थोड़ा मदरसा देखने दो। किचन में जाकर देखा तो सालन के भगोने में लकड़ियाँ जो जलाने के रहते वो पड़े हुए हैं और उसमें सालन भी है, आपकी मालूमात के लिए। रोटियां ऐसी बिखरी हुई है, कोई यानी पुरसाने हाल नहीं, बस अल्लाह रहम करे। मैंने कहा अल्लाह बस उम्मत के हाल पे रहम फरमा। ये आज हमारा हाल है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। हमारी ये बेतवज्जोही की वजह से मदरसे मेहनत करने वाले हैं। अभी मेरे एक साथी है, हम दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, एक ही कमरे में सोते थे, एक ही साथ रहते थे और तालीम के बाद हमने दोनों ने तकरीबन 2 से ढाई साल साथ में उसी मदरसे में पढ़ाई भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो साथी ने एक मदरसे की बुनियाद डाला और आज अल्लाह के फजल व करम से अपने तालीम के मेयार को इतने बुलंद, इतने ऊंचे मकाम पर लेकर गया कि पिछले साल उसके मदरसे में 3-4 बच्चों ने एक ही बैठक में पूरा हिफ्ज़ कुरान सुनाई। खुशी होती है ऐसी जब ख़बरें सुनते हैं और पता चलता है। तो कुछ लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को झोंक दिया मदरसे के लिए, और कुछ लोगों को न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ रहा है। क्यों? बेतवज्जोही हमारी। हमारे पास में अगर तालीम का मेयार होता था, मेहनतें होती थी, ये हल नहीं होता था हमारा। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, तमाम लोग जो पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हक़ीर फ़कीर के इन गुजारिशात को सुन रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, याद रखो उम्मत के बच्चे अमानत है आपके पास। आज हम लोगों को अपनी अना घमंड, बाज़ लोगों को इल्मी जो किब्र होता है उनको बहुत शाक गुज़रता है। अगर मदरसे का ज़िम्मेदार वक्त की पाबंदी के बारे में या कुछ और बातों के बारे में कहे ना, आज हमारे नुफूस कबूल नहीं करते। मैं आपको मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे मकतब मैंने 10 बच्चों से शुरू किया था, आज अल्लाह के फजल व करम से 12 से 14 क्लासें हमारे यहाँ पे होती है। मैंने एक इश्तिहार दिया कि भाई हमारे यहाँ पर एक मुअल्लिम की ज़रूरत है और हमारी शराइत में सिर्फ़ एक शर्त है कि पढ़ाने वाला मगरिब की नमाज़ हमारे मस्जिद में पढ़े और उसके फ़ौरन बाद में दरसगाह के अंदर आके बैठ जावे। इसके अलावा हमारी कोई शर्त नहीं। हमारे यहाँ पे गैर हाज़री और ताख़ीर, ये 2 चीज़ें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। बाकी आप कहीं के भी फ़ारिग हो, कैसे भी हो, वो हमारी ज़िम्मेदारी, हम आपको इंशाअल्लाह ट्रेन भी कर देंगे। तो एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा, मौलाना आप जैसे लोग खाली शराइत पे शराइत, शराइत पे शराइत, शराइत पे शराइत लगाते रहते हैं, आपने भी उसके अंदर एक शर्त लिख दी। मैंने कहा भाई, माल जो आपको मिलेगा तनख्वाह के तौर पर या हदिये के तौर पर, वो मेरे बाप का माल नहीं है, मस्जिद का माल है, उम्मत का माल है। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सही जगह लगे। अगर आपको फुकट का माल चाहिए तो आप मदरसे में मत पढ़ाइए हमारे, मैं आपको बग़ैर पढ़ाए के मेरी तरफ से हदिया बोलकर हर महीने उतनी ही रकम दे दिया करूँगा। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब निसाब हूँ
اور میرے کچھ دوست احباب ہیں وہ بھی کچھ رقم میرے پاس دیتے ہیں، میں سال بھر اپنے اعتبار سے اس کو طلباء پر اور دینی کاموں میں خرچ کرتے رہتا ہوں، تو اسی مد میں آپ کو بھی شامل کر کے ایک رقم آپ کو پہنچایا کروں گا میری طرف سے۔ مت آئیے آپ ہمارے یہاں پر، لیکن اگر آپ بولیں گے کہ میں پڑھاؤں گا اور پھر تاخیر کروں گا، وہ تو ہم کسی کے باپ کی برداشت نہیں کریں گے، 5 منٹ بھی نہیں برداشت کریں گے، اس لیے کہ جو آپ کو مل رہا ہے امانت ہے، امانت وہ امت کی۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، ہم لوگ اصول برداشت کرنے کو تیار نہیں، ترتیب سے چلنے کو تیار نہیں ہے، ہم کو خالی پابندی کی اگر بات کی جائے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے پیپروں میں ایڈورٹائزمنٹ دینا پڑ رہے ہیں۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرما کر اصولوں کے ساتھ ہم کو مدارس چلانے کی، مکاتب چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔